حفاظت، اور ایمان کی حفاظت اتنا نازک معاملہ ہے، اتنا نازک معاملہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد ایک جوان شخص، نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے، نام شاید آپ نے سنا ہوگا، ان کا نام ہے حضرت شہر۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت شہر۔ ان کے ابا کا نام ہے حوشب، یعنی حضرت شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ۔ یہ تابعی ہے، جوان ہے، 20-22 سال کی عمر ہوگی یا اس سے کم، جوان ہے بالکل۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے گھر پر جا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی بیویاں ہم سب کی ماں، بولو ہم سب کی ماں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں محترمہ وہ سب ہماری ماں ہے۔ تو یہ نام پھر یاد رکھنا، وہ جوان کا 22 سال کی عمر ہے، نام ہے حضرت شہر، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے گھر پہ، لیکن ایسے نہیں کہ اندر گئے، باہر اوٹ میں کھڑے ہو گئے اور زور سے سلام کیا۔ اور کون بیوی ہے اندر؟ حضرت ام سلمہ، ساتھ میں بولو کون ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انہوں نے باہر سے جب آواز دی ام سلمہ کو آواز، تو اندر سے ام سلمہ نے کہا کون؟ تو کہا شہر۔ کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، امی جان سوال کا جواب دے دو چلا جاؤں گا، نہ کھانا نہ پینا نہ رکنا نہ ٹھہرنا، دور سے آیا ہوں، ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، آپ جواب دے دیں گے میں چلا جاؤں گا۔ تو حضرت ام سلمہ نے اندر سے کہا، فرمایا کیا سوال پوچھنے آئے؟ کہا یہ سوال پوچھنے آیا کہ میرے نبی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، بولو کون سی عمر میں؟ 40۔ اور کون سی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہوا؟ 63۔ کتنے سال ہو گئے بیچ میں؟ 23 سال۔ یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 23 سال جو نبی رہے، رسول رہے، پیغمبر رہے، اور صرف نبی نہیں رہے، سارے نبیوں کے نبی بن کے رہے، تو یہ 23 سال میں آپ نے سب سے زیادہ کون سی دعا مانگی؟ تو حضرت ام سلمہ کے اندر رونے کی آواز آئی، کہا میرے نبی ایک ہی دعا بہت زیادہ مانگتے تھے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لینا۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ بولو میرے ایمان کی۔ تو یہ جو باہر کھڑے تھے نا جوان، کہنے لگے نبی ایمان کی حفاظت کی دعا، ان کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا، ارے ان کی وجہ سے تو پوری دنیا کو ایمان ملا، اور وہ ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا ہاں سب سے زیادہ میرے نبی ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے تھے، اور وہ الفاظ بتائے جو ہم کو بھی یاد کر لینا چاہیے کہ ہمارے نبی کیسے مانگتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نبی سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے تھے، اور یہ دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ایک لائن ہے مگر بہت پیاری لائن ہے، پھر ایک مرتبہ اگر آپ کو یاد ہو تو پڑھو۔ کیا مانگتے تھے ہمارے نبی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی دلوں کے پلٹانے والے میرے ایمان کی حفاظت کر لے، میرے ایمان کی حفاظت کر لے۔ اچھا تو ایمان ملتا ہے، وہ کیوں ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے؟ اندر سے بولو کون؟ ماں۔ حضرت ام سلمہ کی پھر آواز آتی، یہی سوال تو میں نے بھی پوچھا تھا، یہی سوال میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تھا کہ آپ یہ ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، ایمان کی یہ دعا کیوں مانگتے؟ تو کیا جواب ملا؟ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے روتے روتے جواب دیا تھا، وہ جواب سننے جیسا جواب ہے۔ کیا ہمارے نبی نے جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام و ان شاء ازاغ۔ کیا فرمایا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی میرے نبی کو میں نے پوچھا تھا آپ ایمان کی حفاظت کی دعا کیوں مانگتے؟ تو فرمایا سنو، ہم جتنے انسان ہیں سب کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، یہ اللہ
اللہ की दो उंगलियां कैसी, वो अल्लाह बेहतर जाने। मैं बता रहा हूँ जो हमारे नबी ने इशारा करके बताया कि सबके दिल हमारे नबी की दो उंगलियों के दरमियान में है। युकल्लिबुहा कैफ यशा, अल्लाह जैसे चाहते वैसे पलटाते हैं। कभी ऐसा तो ईमान चला गया और उंगली ऊपर हो गई तो मतलब ईमान बच गया। मेरे प्यारो, वो हजरत उम्मे सलमा ने रोते रोते कहा ईमान की हिफाजत बहुत जरूरी है। तो जब उनको ईमान की हिफाजत की जरूरत है, ताबीईन को ईमान की हिफाजत की जरूरत है, तो हमको भी तो ईमान की हिफाजत की जरूरत है या नहीं है? तो अब मेरे को बताओ ईमान कैसे बचाएंगे हम लोग, क्योंकि मेरे को भी बचाना है। भाई ठीक है कोई लंबा चौड़ा बयान करे, लेकिन ईमान तो सबको बचाना है और कब्र में सबको जाना है और कब्र में सवाल जवाब होना ही होना है। जब मैं हूँ आप हो, तो आज हम यहाँ से जाएंगे, अपने घर में जाके बीवी बच्चों को भी कहेंगे, कहेंगे नहीं? खामोश खामोश का कोई बैठे हो गए, कहेंगे नहीं इंशाअल्लाह। भाई बीवी को जाके इधर उधर की बातें करते हो तो कभी दीन की बात भी तो कर लिया करो। और बीवी बच्चों को जाके कहोगे ईमान कैसे बचाएंगे? ईमान बचाने के दो रास्ते हैं। बोलो साथ में बोलो, ईमान बचाने के लिए कितने रास्ते हैं? तो अगर ये दो रास्ते मेरे और आपके पास है, शुक्र मानो इंशाअल्लाह हमारा ईमान बच गया। बोलो हमारा ईमान। और अगर ये दो रास्ते नहीं है तो मौत के वक्त ईमान का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कलमे का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दो रास्ते हैं जिसमें पहला रास्ता, सब सुनेंगे, बहुत अक्ल में आने वाली बात है। पहला रास्ता कुरान। पूरा मजमा बोलो, पहला रास्ता क्या है? कुरान। कुरान की मेहनत, हमारे बच्चे कुरान की तालीम हासिल करें। हम खुद कुरान सही करते या नहीं करते, हमारी सूरह फातिहा सही हुई या नहीं हुई, हमें कुरान पाक रोजाना पढ़ने का कितना मौका मिलता है? अगर हमारा मोबाइल में रोजाना 4-4, 5-5 घंटा जाता है, क्या 15 मिनट आधा घंटा हम इसलिए निकालते हैं कुरान कैसे सीखूंगा और फिर कैसे पढ़ूंगा और कैसे सिखाऊंगा? मेरे दोस्तों कुरान आसान है क्योंकि ईमान बचाना है मेरे प्यारो, ईमान बचाना। और ईमान बचाने के लिए पहला काम, बोलो आज से कौन कौन तैयार है? कुरान 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 कुरान। हाथ ऊपर करो, बोलो कुरान। और मैं सब जगह पे जाके ऐलान करता हूँ कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा। कौन तैयार है? 24 घंटे में आधा घंटा, जिसमें कुरान को सीखना भी, सिखाना भी, पढ़ना, आधे घंटे में सब हो जाएगा। ईमान बचाना हो मेरे प्यारो, दो काम अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। दो काम, जिसमें पहले काम के लिए कौन कौन हाथ उठाकर तैयार है कि रोजाना आधा घंटा, और अपनी बीवी को भी कहो, बच्चों को भी कहो, आधा घंटा कुरान पर मेहनत, आधा घंटा कुरान पर मेहनत। अल्लाह की कसम बात हो जाएंगे। एक तो कुरान पर मेहनत, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात मैं बहुत जल्दी बताता हूँ, 5 वक्त की नमाज, बोलो 5 वक्त की। बस ये दो चीज लेकर चलो, हमारा ईमान, बोलो इंशाअल्लाह हमारे ईमान का आलम, हमारा ईमानी झंडा सलामत रहेगा और मौत तक सलामत रहेगा। तय कर लो कि रोजाना आधा घंटा कुरान पाक की तिलावत करूंगा। और नमाज, यहाँ बहुत सारे बैठे फजर नहीं पढ़े आज, क्यों, क्या हुआ था? फजर में अंधा हो गया, बहरा था फजर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, किसी ने आपसे कर्ज लिया हो, 10-15 हजार 20 हजार कर्ज लिया हो और वो आपको ऐसा बोले कि मैं जा रहा हूँ ये दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, मेरा पैसा जो है ना वो सुबह 4 बजे मेरी ट्रेन है, जरा प्लेटफॉर्म पे आके लेके जाना। जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, जाएंगे या नहीं जाएंगे? या मेरे को बोलेंगे कारी साहब तू लेके आ? बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कितना? 10-15 हजार रुपया, और जबकि अपना खुद का है। ऐसा भी नहीं कि कोई बेनिफिट है, कोई प्रॉफिट है। अरे भाई मैंने जो कर्ज दिया था वही मूड़ी मेरे को वापस देता है, लेकिन फिर भी जा रहा है, सुबह 4 बजे उठ के जा रहा है और वहां जाके उसके साथ गर्म जोशी के साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, उसके गले भी लगता है, उसकी मुलाकात भी करता है और वो 15,000 रुपए लेके वापस भी आता है। एक 15,000 की मोहब्बत जो अपना माल है, उसके लिए सुबह 4 बजे आंख खुली। और हमारे नबी ने फजर के लिए अजान हुई तो आंख नहीं खुली हमारी। सीधी बात है, उसकी मोहब्बत थी, हुजूर की मोहब्बत नहीं थी। वरना मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़े, आपने बहुत सुना होगा क्या मिलता है, लेकिन आज मेरे नालायक की जबान सुनो, जल्दी जल्दी सुनना। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बोलो हाँ,
बोलो ना, हाँ हाँ, उनसे गलती हुई, बोलो गलती हुई। 300 साल रोए। कितने साल रोए? 300 साल रोए। 300, क्योंकि उम्र बहुत लंबी थी। 300 साल रोते रहे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। 300 साल के बाद अल्लाह ने माफ किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। हजरत आदम 300 साल रोए, अल्लाह ने माफ कर दिया। मानो ने साहबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये 300 साल हम कब रोएंगे? हमारी उम्र ही नहीं है 300 साल। 300 साल कौन जीने वाला हमें? 100 पूरे नहीं करेगा भाई। 300 तो साहबे किराम ने कहा वो तो रोए 300 साल, क्योंकि उम्र थी। हम हमारे नबी ने क्या फरमाया? सब बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मुझे फजर की नमाज अता फरमाई है। हमारे नबी ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ ले, फजर की नमाज पढ़ ले। हजरत आदम को जिंदगी में 300 साल रोने का जो सवाब मिला, तुझे रोजाना हर फजर की नमाज में 300 साल रोने का सवाब मिलता जाएगा। रोज फजर पढ़, मस्जिद से निकलो 300 साल रोने का सवाब मिल गया। तो ये छोटा सौदा है कि बड़ा सौदा है? हाँ, वो 15,000 के लिए भागा था ना वहाँ प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारो, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के गले पे, बस मैं 1-2 नमाज का बता रहा हूँ, फिर शेख साहब को मैं बुला रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बोलो ना अपने बेटे के, अरे बोलो ना, गले पे कौन करेगा? कौन? बकरा ईद में बड़ा तूफान होता हमारा, एला बकरा लाए, एला अगदा अपनी आदत है, ईद की नमाज के बाद अपनी बिल्डिंग में पहला बकरा मेरा गिरना चाहिए। औलाद को गिराना होता तो बोलता पहला मेरा बच्चा गिरेगा। तो हज़रत इब्राहिम ने जो काम किया, सहाबा किराम ने पूछा होगा, मेरा एहसास कहता है कि अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहिम ने इतना बड़ा काम किया, अपने बेटे को लाए और वो गले पे छुए। वो अलग बात है कि अल्लाह ने बेटे को हटा दिया हज़रत इस्माइल को और जन्नत का जानवर आ गया, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम तो किया ना। हमारे नबी ने क्या फरमाया, मेरा उम्मती भी कर सकता है। तो सबको टेंशन हो गया, भाई मेरा उम्मती कर सकता है मतलब है कि हमको भी बेटे के गले पे छुरी चलाना? नहीं, हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जोहर की नमाज इत्मीनान से अदा करे, सुन्नत और नवाफिल के साथ अदा करे, रोजाना अदा करे। हजरत इब्राहिम को जिंदगी में एक बार बेटे के गले पे छुरी चलाने का सवाब मिला। मेरा उम्मती रोजाना जोहर पढ़ता रहेगा, वही सवाब रोजाना अल्लाह अता करता रहेगा जो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अता किया था। बताओ कितना बड़ा सवाब है। कौन सी नमाज हो गई? जल्दी चलो। असर की नमाज, असर की नमाज। एक नबी गुजरे हजरत उज़ैर, बोलो हजरत। हाँ, बहुत लंबा वाकया है। वाकया सिर्फ इतना है, अल्लाह ने 100 साल उनको सुला दिया था। कितने साल? और फिर अल्लाह ने उनको जगाया और अल्लाह ने कहा, उज़ैर कहते थे ना मैं कैसे जिंदा करूंगा, देखो एग्जाम्पल, 100 साल तुम्हें सुलाया और फिर तुम्हें, तो हजरत उज़ैर ने कहा मेरा ईमान बढ़ गया, मेरा ईमान बढ़ गया। तो यही बात हमारे नबी के सामने आई कि हम में से कौन 100 साल सोएगा फिर वापस जिंदा होगा। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती असर की नमाज सुन्नत और फर्ज के साथ पढ़ ले। हजरत उज़ैर का जो ईमान एक बार जिंदगी में बढ़ा, तेरी रोजाना असर की नमाज में अल्लाह वो ईमान बढ़ाता चला जाएगा। मेरे दोस्तों, हजरत अय्यूब से एक मिस्टेक हो गई, बहुत रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि निढाल हो गए। और रोते रोते आपने 3 रकात नमाज पढ़ी और इतना रोए कि जमीन पर आंसू के कतरे ऐसे जैसे कि पानी छलक कर गिरता है, टप टप आवाजें आ रही है। सहाबा को जब पता चला कि नेमल आब्द इन्नहु अव्वाब, अल्लाह कहते मेरे अय्यूब से बढ़ के रोने वाला कौन होगा? तो सहाबा ने पूछा कौन रोने वाला होगा? कहा जो मेरा उम्मती मर्द या औरत मगरिब की नमाज सुन्नत और नवाफिल के साथ हजरत अय्यूब के रोने पर जो सवाब मिला वो सवाब